Department of Environmental Science and Engineering, and I'm also the director of Tamil Nadu Minerals. So, independent director. Yes, yes, it is a state government company. So, nothing so important, but I have to attend the board meetings. It's important. Yes. Very important role, sir. Yes, but you know, in board meetings they don't talk about environment. They talk only about finance. That is the, Unfortunate part. very unfortunate part. Industry's focus is only money. Yes, you know, if they at least 5 minutes if they discuss about safety and environment, then the entire industry will be aligned in that direction. But they don't give time. If they MD do not give time in the area of environmental safety, then who will give time? Now, first time my wife and my son are also attending my lecture. घर में तो वो लोग बोलते हैं मैं सुनता हूँ अभी मैं Okay. और धनबाद आप भी बोल सकते हैं. तो जितने भी बात अपन लिखे हैं जब भी मैं दुर्गापुर आता हूँ ना उन लोगों को लेके आता हूँ. It's a nice place. 1 घंटा भी अच्छा लगता है. छुट्टी है संडे. So my topic is environmental impact assessment and clearance of steel and power industries. Okay, this title has been allotted by Dr. Arup, and I'm very much thankful to NIT Durgapur and Dr. Arup for including me. You must have met Nausad, Yes. Dr. Nausad sir. So I also know him from last, I think, 15-20 years. Yes, he mentioned. He used to come to ISM, and he is very kind enough to take some of my students there for higher studies and Yeah, scholarships. exchange program and all. Very kind for Indian students. It's good. And our students also get, Exposure. exposure. Although those machines we also have, but here if you want to do an experiment, they will take 2 months time. But there you must have met Akash. Avash. Akash also came yesterday. Akash, no. कल था शायद ना. आकाश था. He said that in one room I have all those instruments around my room, and I can do all the experiment myself. I don't require anybody's help. Here those instruments require help of technical assistant and all. There in Australia the hands are very less. There is no assistant given something. Everything you have to do, and in that process they learn also. That is a good thing there. They are actually training class. After that, they are allowed to make Yes. at the lab. Initially training process. Without that, they will damage the instruments. This is my college. How many of you have seen this? 1926 college, and we will be celebrating the centenary. That's why this one is given. Okay. centenary celebrate कर रहे हैं. और अभी हम लोग एक ये भी करेंगे. एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स हम लोग को एक स्पॉन्सर किया एक सेमिनार माइनिंग एंड एनवायरनमेंट. हाउ डू वी गो इन 2020-70. we'll be organizing that on November 7th-8th. So that is the beginning of the centenary of ISM. तो हम लोग इसीलिए हम लोग एक माइनिंग का एनवायरनमेंट का एक सेमिनार करेंगे. And this is the deliverables. Now I will introduce little bit which you know, and then different process of steel making, thermal power plants, some environmental issues, core and buffer zones. आप लोग core buffer zones जानते हैं? Core zone, buffer zone. Core is the most protected one. Buffer is. हाँ? Core is the most protected one. Buffer is the little slightly relaxed now. Okay, then that is not the right definition. I'll tell you the right definition. Actually, in DVC, in steel plant, the environment department is very ill managed. Now, what happens is a non-productive department. So, whosoever has some problem, उसको They are- order दे देते हैं. posted in that department. हाँ, ये posted in that department to safety department. In DVC there is two departments. One is quality and second is
And these are the most Department, important. PLUC. These are Dumping the zone. most important Dumping department. zone. Dumping. These are the most important department. But people think that you know, these are not important. I have seen many of my mining engineers in Coal India when they are posted in jail as a general manager environment. They will come to the director and बोलेगा आपको posting करा दो production में हमको stunted क्यों है? They feel very bad while working for environment, but this is the most important thing which our country needs. Okay, so and then pre-establishment, pre-operation approvals. What are the requirement? Steel plant भी खोलेंगे या power plant खोलेंगे इसका बहुत जरूरत है. And then land acquisition for industry, you need land. Environmental clearance process. Post environmental clearance process monitoring क्या करना होता है and environmental auditing in power plant. Environmental auditing जैसे आप लोगों को भी पता होगा ash audit होता है, है ना? तो that is also a part of. तो आप लोग इसको जानते हैं. You all know these things. But what I will do, I will just officially, I will give you some structured information that these are the things to be done. You all know all these things. I am just a teacher, and it is my job to assemble those information into one place. Now since metal is required, पाँच दिन से ये सुन रहे हैं, metal बहुत जरूरत है, and India is producing around 145 million ton of steel, and it requires more than 300 million ton by 2035 crude steel, not yes, finished steel. Crude steel तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरत है. You require हाइड्रोजन से तो बन नहीं रहा, बनने में आपको कम से कम 25 साल लगेगा. वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हो रहा है. एंड रिन्यूएबल्स भी अभी यूज नहीं हो रहा है, तो हम लोग को कोयला चलाना ही है. अभी भी जितना नया नया स्टील प्लांट हो रहा है वो सब कोयला से ही हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेस एंड दोस प्रोसेस. एंड इंडिया हैज टू इंपोर्ट लॉट ऑफ कोल. ओके, नाउ these are the in this metallurgy and power sector, after 1825 lot of things developed, things become more complex because many metals came in, vegetable, and then उसके पहले तो copper था ही, copper was there, iron was there, zinc was there, because from the old utensil and old history you can find that they were using metals, but not in a formal way. But scientific and industrial development started in around 1825 when some discovery of aluminium was done in Denmark, then Holt-Hérold process and all. And this presentation is prepared by my son, who is studying in NIFT, Ranchi. NIMT Ranchi is a metallurgical engineer. हम उसको बोला कि बना, तो छुट्टी में था, समर वेकेशन का, ट्रेनिंग भी कर रहा था, टाटा स्टील में बना क्लास लेना है. तो he prepared most of the slide. हम भी इसमें environment add कर. तो ये थोड़ा metallurgy टाइप का लग रहा है. And these are the metals we require. And see, metals required तो mining भी करना पड़ेगा ना, कहाँ से मिलेगा? हम लोग को कार चाहिए, हम लोग को बिल्डिंग चाहिए, और माइनिंग बंद करेंगे तो हो नहीं सकता. कहाँ से आएगा? इवन दवाई, they all come from mines. The medicine, the minerals we take in the medicine come from mines. So we cannot say that mining and people look down upon that industry. Mining में काम करते हो, मतलब बहुत ही खत्म हो गया, है ना? Mining, agriculture business चलेगा नहीं. It is required. This building is made up of limestone, bricks, stones, cement. कहाँ से आता है? Iron, steel, कहाँ से आएगा? सब माइन से आता है. माइनिंग भी इससे जोड़ना चाहिए, लेकिन माइनिंग डॉक्टर ने हटा दिया, बोला कि मेटलर्जी पढ़ाइए सर. तो माइनिंग इज द बेस, ये सब चाहिए. अभी मेटलर्जी, अभी जिंदल अभी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिकॉज देयर ओर इज गेटिंग डिग्रेडेड. मतलब अच्छा ओर तो खत्म हो जा रहा है, खराब ओर मिल रहा है. मिनरल बेनिफिशिएशन इज कमिंग अप इन अ वेरी बिग वे. दैट इज आल्सो. Sir, he is from Jindal. अच्छा. Namaste. Recently I got a letter from them regarding that. PhD we are going to do the Yes. family. Yes. And they are finding
finding some resources from the Western Ghats, and they are planning to do underground mining there. हम बोले underground mining आयरन में होता नहीं है, बोला कि नहीं सर ट्यूना में होता है, स्वीडन में, यहाँ भी करना है। वेस्टर्न घाट तो गवर्नमेंट देगा नहीं माइनिंग करने के लिए, पहाड़ है। तो and iron ore, unfortunately iron ore is found in cap deposit, मतलब ऊपर में ही माउंटेन के ऊपर में ही होता है। It is the geologic position is like that. माउंटेन के टॉप में Laterite deposit, hill top में ये सब में होता है। वहाँ तो अलाउड करेगा नहीं। वहाँ तो अलाउ करता नहीं है, लेकिन अभी वहाँ मंडी वगैरह सब में हो रहा है। वहाँ मंडी सिंगो में सब वहाँ हिल टॉप में ही हो रहा है। अलाउ कर मेगा तो बुरु किरीबुरु बुआ माइंस आर all in hill top। And हमेशा लड़ाई हो रहा है फॉरेस्ट माइनिंग भी ठीक से नहीं कर रहा है, सबको थोड़ा थोड़ा माइनिंग करने दे रहा है। And there are elephant corridors and everybody is suffering। हम बोलते हैं कि भाई एक माइन को तुम दे दो 40 मिलियन टन बनाने के लिए, बाकी सब माइन बंद रखो, लेकिन ऐसा नहीं, सब 1-1 मिलियन टन कर रहा है। अब बोलता है हाथी कहाँ दौड़ेगा, ये सब कर। तो these are the environmental issues of the, so these mineral, these industries like for example electro steel झारखंड में ओपन हुआ, ओके, बिल्डिंग तो इलेक्ट्रो स्टील का बन गया। अब रहा माइंस भी मिल गया उसको झरिया में, एंड सिंगभूम में they got a iron ore mines। अब क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद बोला कोल स्कैम किया, तो जितना भी माइंस था उसको वापस ले लिया, ओके। तो इसका बिल्डिंग खड़ा हो गया, इसका माइन चला गया हाथ से, that has been taken by other company, and then the mine सरंदा फॉरेस्ट क्या, वहाँ पे लोग कंप्लेंट किया कि यहाँ पे एलिफेंट चलता है, यहाँ पे माइनिंग नहीं करने दीजिएगा। तो दैट कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गया, बिकॉज द प्रोजेक्ट कैलकुलेशन was different, because they will be mining and using very low cost material, but now they have to buy, so the company went into losses, and then it was purchased by Vedanta. Vedanta is also facing, but Vedanta have some mines, and they is their man-made, but unfortunately that plant has some environmental issues. It is not having environmental clearance, but the plant is running, and it is the matter is under Supreme Court sub-judice. सोचिए अब consent to operate कुछ नहीं है, चल रहा है, तो स्टील बड़ा स्टील प्लांट आज 15 साल हो गया चल रहा है। So these are the requirement. This is the steel plant as it looks like. There are a lot of stacks. So प्लांट देख के लग रहा है कि बहुत environmental issue होगा, क्योंकि धुआं निकलता है, and there are lot of iron ore, coal, all they will be dumped here and then mixed and then used in the blast furnace. So environmental problem has to be there. We cannot say that I am very environmental friendly. Then these are the processes which produces generate lot of heat. It requires lot of heat. How will you heat them? How will you melt the iron? You require power. So power plant is also required. These are the processes of blast furnace, sponge iron, DRI. I am not going into this because you all are mostly from other industries. Yes, Jindal is using lot of, these are not used by Jindal का DRI plant है ना? They are using Corex and Corex method ना? We have Corex in Vijayanagar. Vijayanagar. Right. So is Raigad. JSPL. Jindal Steel and Power. That plant belongs to Naveen. Now, इसमें क्या है कि DRI में अब coking coal नहीं लगता है. That is the good thing in it. There is no blast furnace. There is a clean in which coal is burned, and that coal reduces the iron ore. Now, national steel policy, this was, I was telling that 300 million ton is the target in country, and per capita finished steel consumption is government रखा है 160 million ton. माने हम लोग कंज्यूम करेंगे, इसीलिए गाड़ी को बोलते हैं कि 15 साल में स्क्रैप करो, गाड़ी के पीछे लग जाएगा, कल बोलेगा
चाहिए ना, हाँ स्क्रैप चाहिए इसको स्क्रैप चाहिए, हाँ, तोड़ना है। लेकिन दिस इज नॉट ए गुड पॉलिसी। आपको गाड़ी बनाने के लिए भी बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट चाहिए, माइनिंग करना पड़ेगा, ये करेगा आप माने व्हाई चेंज द इंजन, अब इंजन चेंज कर लीजिए आपका 100 किलोमीटर गाड़ी चलाइए। बहुत लोगों का पुराना गाड़ी होता है, मेरे पापा चढ़े हैं, दादा भी चढ़े हैं, इसको नहीं बेचेंगे, ऐसा भी होता है। तो इमोशनल वैल्यू होता है ना गाड़ी का इंटीरियर में। तो anyway, these are the emissions. Like for example, now why I am showing this, when you understand the process, now each process will have some emissions, like air pollution, water pollution, sound, noise, ये सब होता है। तो we as a environmental, we as the engineers, we should also think that we have to reduce this, because these are harming you first, because you are the employee. Then it is also harming your family, because they are not your employee, but they are breathing the same air In the vicinity. in the vicinity. So if you think about the company, you are doing wrong. कंपनी आपका है, हम लोग जब सब मिल के काम करते हैं कंपनी होता है, हाँ? आप रिटायर हो जाएंगे, आपका कंपनी नहीं है, you will join some other company maybe, or your family. But your health, the country's health is most important. So if you spend around 5% or even less than that for environment, you will not do any harm to the company. Rather, the environmental scenario will increase, the health condition of the worker, employee will increase, there will be less reducing, medical cost. हम लोग का सब लोग देखना DVC के आसपास जो रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बहुत होता है, हाँ, ये पावर प्लांट, आपका स्टील प्लांट के पास लंग प्रॉब्लम होता ही है, बच्चे लोगों का भी देखिएगा, बहुत सारे एस्मा ये सब होता है, बिकॉज ऑफ द अनसिंपल पानी छिड़कने से, ESP चलाने से ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये भी बंद कर देता है बहुत सारे। While coming from Dhanbad to here, I saw about 150 coke oil plant, all emitting lot of fumes, black fumes. What is the pollution control board doing and what we are doing, I do not know. अब मैं कितना बार उन लोगों को सेमिनार किया, बोला कि भाई 5-5 लाख खर्चा करो, देखना छोड़े तो ESP आजकल मिलता है चाइनीज में, हाँ हो जाएगा, लेकिन वो लोग सुनता नहीं, unless they require data. Okay, and these are emitting, every day they are emitting thousands of million cubic meter of smokes, and that contains particles, black, कहाँ जाता है? हमारे ही पोल्यूशन में आता है, मेरा आपका सबका। इसका ना कोई आंदोलन हुआ, ना कुछ ये हुआ, ना everything is set. मैं ऑफिशियली कुछ बोलूँगा नहीं। तो these are the emissions. रोटरी क्लीन में क्या क्या emission है देखिए, PM10, SOx, NOx, thermal emissions, heat and noise. Similarly, electric steel making में भी आपका कुछ emissions होता है. These things are there. Continuous casting में भी thermal, continuous casting means जहाँ पे slab ये सब casting होता है, वहाँ पे heat radiation काफी होता है and heat losses काफी होता है. So how to use those heat? Many companies are using this. This is a schematic diagram of a power plant. These I teach my environmental engineering boys. We have started environmental engineering in 2006, in which we teach all these regarding environmental clearance, remote sensing, air pollution, and the students come from JEE Advanced, and around 45 is the BTech strength, 45 is MTech strength, and they all get job in very good companies. And many are serving DVCs also. DVC में भी बहुत सारे students आए हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं, and they all know all this process engineering, because unless they know the process, they will not be able to serve the environment. They should, because any environment, any activity has some emissions. So you have to fight in the source, reduce the source. Then only you can do something for environment. धुआं एक बार निकल गया, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो. Now this is a thermal power plant. The thermal power plant, this is the diagram, and you can see, you will be seeing this type of scenery, like huge amount of waste dump, smoke coming out, and this waste, not only damage the land,
it also damage the groundwater also, because the water will be going leaching through leaching and it will contaminate the groundwater. So and हम लोग का क्या है ना कि देखिएगा DVC का जितना भी पावर प्लांट है सब दामोदर के किनारे बना हुआ है, and we do not have much control during rains. During rain, some of the surface runoff will also go into the Damodar river, and this water we are drinking. We also drink, you also drink. So the planning was wrong. It has to be some kilometer away from the river, so that you have a control over the ash dumps. Otherwise, everything will be going into the river. Yes. Physically, you cannot handle them. But now, I was very happy while attending several ash meet that DVC is selling more than 100% of its ash. That means old ash dumps are also being sold for construction and other materials. So the problem is has reduced a lot. Okay. And in that those ash ponds they are building new thermal power plant. I have seen in BTPS. Okay, उस जगह में जहाँ पे ash dump था, ash खत्म हो गया, बेच दिया. वहाँ पे और एक नया यूनिट खुल रहा है. That is good. Okay. Now देखिए, this is core zone. Suppose this is the lease area. Okay, the lease area is your core zone, where most of the activity, whether mining or thermal power plant or your steel plant, will be there. So that is the जहाँ जो lease लेते हैं, that is the core zone. देखिए, dump का area भी आप ही का है. आप दूसरे के जगह में dumping नहीं कर सकते हैं. ये dump अगर उधर extend कर जाएगा तो you'll be fined. अदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होगा या गवर्नमेंट का लैंड में होगा या पब्लिक का, आपको फाइन लग जाएगा. तो दीज आर ये देखिए क्वेश्चन, मैं सीधा क्वेश्चन पेपर से उठा के लाया. दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर. स्टूडेंट लोग ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि एक माइंस है, इतना कोर जोन है, इतना बफर जोन है, डायग्राम बनाओ, अब दिखाओ. जैसे हम इसमें लिखे हैं, a river is flowing from this direction, यहाँ पे लिखे हैं, a river is flowing from north to south at distance of 2 km from the east of the project. तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का ईस्ट साइड में रिवर फ्लो करता है. तो लड़का लोग का इमेजिनेशन भी बढ़ता है, कहाँ पे है, गूगल में देखता है, एंड देन डिस्क्राइब करता है कि मैं चलो थर्मल पावर प्लांट है, जैसे चंद्रपुरा थर्मल पावर, उसका एनवायरमेंटल जोन निकालो. तो वो लोग प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा काम करता है. हम लोग जब प्लांट जाते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग इसके अलावा कुछ देखे नहीं है जो काम करते हैं थर्मल पावर प्लांट में. बट योर एरिया इज 10 किलोमीटर बियॉन्ड. जो एनवायरमेंटल देख रहे हैं ना, उसका 10 किलोमीटर तक. अच्छा, अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है तब तो और प्रॉब्लम है. तो आपको सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये लोग से भी कनेक्शन होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में क्या, जैसे मान लीजिए वहाँ पे डैम बना है, दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट. रूल सब में वही लगता है, whether it is a dam or thermal power plant or it is a steel plant. तो हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई चलो मान लो कि पाकिस्तान बॉर्डर में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग, हाँ तो क्या इश्यू हुआ. So these things are discussed among the students. Now who will deal with the environmental clearance, whether the state or the center. Okay, इसमें भी बहुत सारे चीज है. जैसे मान लीजिए एक स्टील प्लांट which is producing 1 million ton or less, the environmental clearance will be given by the state. The moment it is increased by 1 million ton, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सेंट्रल इसमें जो उसका मैं डिटेल्स दे दिया हूँ. ओके, तो सेंट्रल मतलब MOEFCC, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा. पहले सब लोग दिल्ली में जाते थे, लेकिन दिल्ली में इतना भीड़ हो गया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने में 2 साल लगता था. एक प्रेजेंटेशन कर देते. तो क्या किया गवर्नमेंट ने, डिसेंट्रलाइज कर दिया. स्टेट को बोल दिया कि जो छोटे छोटे थर्मल पावर प्लांट है से बिलो 500 मेगावाट, वो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे, अबव 500 मेगावाट सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी. डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल इशू. ओके, न्यूक्लियर प्लांट होगा तो कौन देखेगा, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक मिनरल एंड sensitive issue. So you understood. So why I have drawn this? There may be a hospital, there may be a school, there may be
एग्रीकल्चरल लैंड जैसे मेजिया थर्मल पावर प्लांट में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, विलेजर्स वो लोग बोल रहे हैं कि भाई बंद करिए हंगामा करता है। एक तो वो लोग नौकरी चाहिए, देन दे आस्क बोलते हैं कि भाई आपका जो ऐश है मेरा खेत में गिर रहा है, प्रोडक्टिविटी इज बिकमिंग लो। सो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर सॉइल स्टडी करना है और देखना है कि भाई सॉइल क्वालिटी रियली घट रहा है कि नहीं। अगर नहीं घट रहा है तो आप बोलिए उसको कि भाई सॉइल स्टडी नहीं घट रहा, अगर घट रहा है तो आप एक्शन लीजिए। हाँ, यू हैव टू गिव सम फर्टिलाइजर टू देम, यू हैव टू ब्रिंग सम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बोला भाई इसमें क्या करें देखिए ऐसा हो रहा है, तो यू हैव टू हेल्प देम आउट, अदरवाइज वो लोग स्ट्राइक करेगा, आपका पावर प्लांट बंद कर देगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आसपास आपका क्या है। स्कूल है तो यहाँ पे देखिए गाड़ी अगर जाएगा तो नॉइस कम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल सामने रोड है, मिनरल रोड, तो भाई यहाँ पे आप यहाँ से नहीं करके आप इधर से रोड बनाइए। तो ये सब आपको प्लानिंग करना होगा। आपका एरिया इतना ही है, इसी में काम कर सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर एरिया आपको देखना है। स्टूडेंट लोगों को बोलते हैं जहाँ भी जाता है ट्रेनिंग वाली चीजें, हमारे आसपास क्या है, नदी है, बोल नहीं पाता है क्योंकि वो सीधा प्लांट जाता है, ट्रेनिंग करता है, चला आता है। एनवायरमेंट का एरिया और बड़ा होता है, तो दैट एरिया इज कॉल्ड बफर जोन। दिस इज कॉल्ड बफर जोन एंड वी हैव टू सी व्हिच इज द प्रिवेलेंट विंड डायरेक्शन, इन व्हिच एरिया द पीपल विल बी अफेक्टेड, विलेज किधर है। हाँ, तो अगर है तो आपको ज्यादा एक्शन लेना पड़ेगा, सो दैट दिस इज नॉट अफेक्टेड, द पॉपुलेशन इज नॉट अफेक्टेड। अब इसके बाद देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आपको दुर्गापुर में दिस इज द दामोदर नदी, ओके, दिस इज द दामोदर रिवर एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल जोन, इट्स अ वेरी प्लांट सिटी। देखिए इंडस्ट्रियल जोन इज अराउंड द रिवर, स्टील प्लांट, डीटीपीएस सब यहीं पे है। मेरा मौसी यहाँ रहती थी अंदरपुर में, यहाँ पे। हाँ, there is a ash pond just behind it, and now there are lot of DRI plants open, and these DRI plants I do not know whether they follow any environmental norms or not. Very polluted these places, so these are all industrial zone. ये जो है ये NIT दुर्गापुर यहाँ पे है, it is not an industrial zone, it is little bit away from the industrial zone. But that time when Bidhan Chandra Rao planned this city, he probably that time the fundamental of core zone and buffer zone was not there. So it should be the settlement should have been little bit away, because you see, if you see this one, if you see this one, this is Durgapur steel plant, so this will be the buffer zone. Okay. But here, most of the colonies like A zone, B zone are there. NIT Durgapur, so buffer zone में ही है. So we are definitely affected by the pollution. थोड़ा सा दूर होने से अच्छा है. I do not know which is the prevalent wind direction. हाँ, wind direction किधर भी होगा, इधर भी तो villages है. तो planning जो city planning बहुत अच्छा हुआ है, because ये जोन में पूरा ही industry है. यहाँ पे settlement करने का पुराना village था वो रह गया, और कुछ कंपनी अपना कॉलोनी भी यहीं खोल दी. यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो कॉलोनी अपना जैसे बोकारो उत्तरों में है, बोकारो में स्टील प्लांट दूर में है, कॉलोनी बहुत दूर है. इसका प्लानिंग और बढ़िया हो. एंड ये थोड़ा छोटा माफ कीजिएगा, मैं कल रात को ही बना नहीं दिख रहा है लाइट, ये लाइट वो सिर्फ वहाँ से लाइट ऑफ कर तो हो ठीक ठीक ठीक. देखिए प्री एस्टैब्लिशमेंट अप्रूवल, ये मैं आप लोगों को दे दिया हूँ. प्री एस्टैब्लिशमेंट पर एस्टैब्लिश करने का पहले क्या क्या जरूरत है. आप स्टील प्लांट खोलेंगे न्यू और पावर प्लांट खोलेंगे न्यू, क्या करना है. देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपको लैंड जरूरत है. सबसे पहले यू रिक्वायर लैंड फॉर विच यू नीड आइदर ए लीज और ए ओनरशिप ऑफ द लैंड. तो इसमें म्यूटेशन ऑफ लैंड इज इंपॉर्टेंट. देन सैंक्शन ऑफ द बिल्डिंग प्लान. आप जो बनाएंगे, एक बड़ा इंडस्ट्री बनाएंगे तो बिल्डिंग प्लान जैसे आपका घर बनाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी से सैंक्शन लेता है कि नहीं, परमिशन. तो वैसे ही
WBC वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपको परमिशन लेना है इफ इट इज इन वेस्ट बंगाल, एंड अगर ये झारखंड में होगा तो झारखंड का भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, वहां से परमिशन लेना होगा फॉर बिल्डिंग द स्टील प्लांट और द पावर प्लांट। ओके, देन द प्लीज लेवल कंप्लीशन का भी इंफॉर्मेशन देना होगा, प्लीज हुआ है, म्युनिसिपैलिटी कब देते हैं कि नहीं, घर जब बनाते हैं वो लोग देखने आता है कि वैसे ही हुआ कि नहीं, एज पर द डायग्राम हुआ कि नहीं परमिशन। एंड देन फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन एंड देन परमिशन फ्रॉम द सरफेस वाटर। आप पानी लेना है बिल्डिंग बनाने के लिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री बना रहे पानी लेना है ना, कहाँ से पानी लीजिएगा, नदी से या ग्राउंड से, इसका परमिशन चाहिए। कहाँ से लेना पड़ता है, इरिगेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट। झारखंड में कहाँ से लेना है, झारखंड में आपको लेना है ग्राउंड वाटर बोर्ड। ओके, एवरी स्टेट हैज लिटिल बिट चेंज इन डिफरेंट मतलब इन द रूल्स, बट मोर और लेस द रूल्स आर सेम। ओके, जैसे यहाँ पे वाटर इज आल्सो अवेलेबल विद इन द पार्क, तो अगर उसी में इंडस्ट्रियल जोन से ही लेना है तो आपका वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपको वाटर के लिए लेना है। हम लोग जब जैसे NIT is using water, it must have taken permission from ground water board कि हम इतना पानी हम यूज करते हैं स्टूडेंट लोगों को पिलाने और करने के लिए, नहीं तो अगर नहीं कर रहे तो दिक्कत हो जाएगी। सिमिलरली थर्मल पावर प्लांट का भी वही हाल है, they have to take permission from the necessary bodies, statutory bodies. Then consent to establish किसको देना है, to the state pollution control board. They will give you they are the police of environmental regulations laws. जैसे हम लोग का कुछ भी इंसिडेंट होने से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वैसे ही आप जो एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको consent to establish एक फॉर्म मिलता है। That consent to establish हर एक डिपार्टमेंट आप लोग करते हैं। शुरू में एक बार जिस समय बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे नया यूनिट बना रहे हैं डीवीसी का BTPS में, ओके, तो कॉन्सेप्ट टू एस्टैब्लिश, ओके, किससे लेना है, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नॉट गवर्नमेंट, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन पेड़ काटना है, जगह जब लैंड आप मिल गया तो पेड़ काटना है, पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखिए इतना विंडोज है तब आपको क्लियरेंस मिलेगा। देन वो तो फैक्ट्री बना रहे हैं, पावर प्लांट या स्टील प्लांट, फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट से परमिशन लेना है कि आप इतना लेबर होगा, इतना एम्प्लॉइज होंगे, एंड दीज आर द कॉम्पेंसेशन फॉर एनी इंसिडेंट, दीज आर द सैलरीज, पूरा डिटेल में देना पड़ता है, तब आपको लेबर कमिश्नर आपको परमिशन देता है। डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, ओके, अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री प्लान। Then temporary electrical connection during operation, during building आपको electrical temporary connection चाहिए, and permission to extract groundwater, state again it is from groundwater board, and permission for extraction of groundwater from where groundwater is sourced, so you see for everything these are natural resource, groundwater, mineral, तो यहाँ पे mineral का दिया हुआ नहीं है, अलग है, माइनिंग का अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। माइनिंग का भी ये सब लेना पड़ता है, फैक्ट्री खाली फैक्ट्री एक्ट का अंदर नहीं है, ये DGMS परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल या मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एंड देन दिस इज द प्री ऑपरेशन अप्रूवल, मतलब अब ऑपरेशन चालू होगा, एस्टैब्लिश हो गया आपका, देन ऑपरेशन। तो व्हाट आर दीज, बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अब आप बिल्डिंग में घुसेंगे, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी, फायर लाइसेंस, consent to operate under water and air act, consent to operate किससे लेंगे, from pollution control board, because consent to establish वही लोग दिया, and consent to operate under water and air act, क्यों water and air act, why, because you will be taking water and polluting water, जब पानी पीते हैं, पानी निकलते भी हैं, कहाँ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ना? So every thermal power plant and every steel plant they consume lot of water, and they will send the water to the respective rivers. So when you are sending this to respective
बेंगल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का वेबसाइट पर दिया, कितना अच्छा झारखंड में भी है दिया हुआ कि आप अगर इंडस्ट्री खोलने वाले हैं, कुछ भी इंडस्ट्री चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, you have to go through all these processes. Okay. Now how to get a lease? Land. Land कहाँ से मिलेगा आपको? एप्लीकेशन करना पड़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड पोटेंशियली बिडिंग. अगर if that same land जिंदल भी ले रहा है, जिंदल भी बोलेगा लेगा, टीबीसी बोलेगा लेगा, तब गवर्नमेंट क्या करेगा? बिडिंग करेगा, जो ज्यादा पैसे देगा उसको देगा. तो ये लैंड एक्विजिशन, दिस इज ए डिफरेंट टॉपिक, इसको समझाने में 5-6 लेक्चर लगता है. हाँ, मैं एक लेक्चर में एक स्लाइड में आपको बता दिया. एंड व्हाट आर द लैंड टाइप्स intended? Suppose it is a forest land, suppose it is a government land or a private land. So there are different processes for acquiring those. Okay. So West Bengal government has that portal from which you can apply. देखिए वहाँ पे एक जगह भी है जहाँ पे आप गूगल में पॉइंट कर सकते हैं. These are the coordinates. ये लैंड में लेना था. गवर्नमेंट के पास everything is given in the website and you can upload the application there. आप अभी हार्ड कॉपी का जमाना नहीं रहा, सब इंटरनेट में हो जाता है. एंड दिस इज झारखंड का लतियान होता है. GMK लैंड जैसे गैर मजूबा लैंड. Okay, this means uncultivated wasteland or jungle land that was traditionally held by common communities. तो गैर मजूबा लैंड अलग होता है, गवर्नमेंट का होता है. प्राइवेट लैंड, रियायती लैंड, these are the different state has different law. तो लैंड लेने के because the land is very important. Without land you cannot set up an industry, whether it is a steel industry or any industry. तो लैंड कैसे लेना है, इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट चाहिए. लैंड डिपार्टमेंट हमेशा ये सोचते रहता है. You should have a full-fledged land department. Otherwise you cannot run an industry. And this is the MOF website in which you need to apply for environmental clearance. Okay. Initially, in 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 17 तक हम लोग हार्ड कॉपी देते थे. उसके बाद के MOF को लगा नहीं भाई इसमें बहुत पेपर यूज होता है. You apply in website. तो पहले हम लोग को 20 कॉपी एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो EIA डॉक्यूमेंट है देना पड़ता था. अभी नहीं देना पड़ता. अभी एक बार अपलोड कर दो बस, वो लोग भी सब ऑफिस भेजते रहता है. तो पेपर कंजम्पशन भी कम हो गया. तो these are देखिए और प्रपोजल कैटेगरी A, कैटेगरी B, CRZ मतलब कोस्टल रेगुलेटरी जोन. सपोज यू आर मेकिंग ए industry near the coast. For example, Tata Steel wanted to make a plant in Paradip, but the government did not give. After 10 years, वो बहुत खर्चा किया उसने, लोगों को डेवलप किया, स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, लेकिन गवर्नमेंट उसको फाइनेंस नहीं दिया because he was very near to coast prone to cyclone. Number one. Number two, in particular tree like केवड़ा tree, केवड़ा का जानते हैं केवड़ा? हम लोग सेंट होता है केवड़ा सेंट, मिल्क शेक वगैरह होता है, सरबत रूह अफ़ज़ा, वो ट्री से आता है. तो ट्री बहुत उस जगह पे बहुत ट्री काटना पड़ता है. और एक तरह का सांप भी वहाँ रहता था, स्नेक. बिकॉज ऑफ दिस हैबिटेट गवर्नमेंट डिड नॉट गिव दैट लैंड. बोला कि नहीं आप यहाँ पर मत खोलिए, दूसरे जगह दे दिया कलिंगा नगर. कलिंगा नगर वो थोड़ा लैंड में ही है एंड लेस प्रोन टू साइक्लोन. वहाँ पे ऐसे ही दुर्गापुर जैसा एक इंडस्ट्रियल जोन खोल दिया. वहाँ पे टाटा, जिंदल, बहुत सारे कंपनी वहाँ पे एक जगह में स्टील प्लांट खोला है कलिंगा नगर. तो इसका बड़ा अच्छा डेवलप किया वो सब एंड वेरी लॉट ऑफ प्लानिंग. एंड दिस इज एनवायरमेंटल क्लियरेंस. एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसे होता है आपको मालूम है? एनीबॉडी? एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए देखिए पहले तो आपको लैंड लेना पड़ेगा. बताया लैंड कैसे लेना है. लैंड MOU करना है, अदर लीज में और परमानेंटली लेना है. आफ्टर दैट यू नीड टू अप्लाई टू MOF फॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस. These are the studies I am going to make. जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि डॉक्टर मैं आ गया, इससे
एक्सरे लीजिए, ये लीजिए, सोनोग्राफी। तो डॉक्टर बोला कि भाई ये सब तो जरूरत नहीं था, आपको तो सीटी स्कैन चाहिए था। फिर हम गए, तो पहले ये नियम था। अभी क्या है, पहले आप जाइए डॉक्टर के पास, अपना प्रपोजल लेके, these are my problems, this is the plan and these are the study I am going to make, whether you agree or not। तो बोलेगा नहीं नहीं, और एक तो स्टडी है रिमोट सेंसिंग स्टडी, इसको भी कर लेना, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी भी कर लेना, बिकॉज तुम पानी का कंजर्व करोगे। तो वो लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना देते हैं कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए क्या क्या स्टडी करना है। अच्छा, इज इट इंटरेस्टिंग द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बहुत कम समय है। आरक्षित लग रहा है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए तो वो टॉर बना देता है एमओएफ। इफ इट इज ए कैटेगरी तो एमओएफ का है, बी कैटेगरी तो कहाँ होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट में भी एक तो एमओएफ का ही एक एजेंसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट अप्रेजल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। इट इज ऑपरेटेड बाय एमओएफ इटसेल्फ बट इट विल बी द स्टेट। सो दे गिव यू ए टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि भाई तुम प्रेस टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज प्रेस्क्रिप्शन है। ये सब टेस्ट करोगे एंड देन स्टडी करना है। स्टडी एक तीन महीना का होता है, एक साल का होता है। 3 महीना मतलब रैपिड ईआई, ईआई मतलब एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट। जो नोन एरिया है, सपोज एक थर्मल पावर प्लांट है बोकारो में, एक थर्मल पावर प्लांट है ये यहाँ पे जेटीपीएस के पास, तो ये सब नोन जगह है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि 3 महीना में तुम रिपोर्ट कर दो स्टडी कर। बट इफ इट इज ए अननोन एरिया, से फॉर एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर में कुछ खुलने वाला है पावर प्लांट, तो उसका एनवायरमेंटल का डेटा नहीं है ज़्यादा, तो गवर्नमेंट बोलेगा 1 साल का चाहिए, तो 1 ईयर लग जाता है। 1 साल का सेंसर लगाता है क्या होता है? नहीं, रेगुलर मंथली आपको मॉनिटर करना होगा। सेंसर से नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा एवरी मंथ। हाँ, एवरी मंथ आपको स्टडी करना है। अच्छा, एयर पोल्यूशन 4 महीना में नहीं होता ड्यूरिंग मानसून, उसका भी सीजन दिखता है। सीजन क्या क्या 3-3 महीना का है। मैं दिसंबर से चालू करता हूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी आता है विंटर सीजन, मार्च अप्रैल मई इज द समर सीजन, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीना हो गया रेनी सीजन। इसमें आप एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन स्टडी नहीं कर सकते, तो ये 4 महीना टफ, इसमें सोशल स्टडी कर सकते हो। ये जो सोशल स्टडी है ना, सोशल स्टडी, रिस्क असेसमेंट, रिमोट सेंसिंग, ये सब कर सकते हो, बट नॉट ऑल दिस। लैंड यूज स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन सब हरा भरा दिखता है। हाँ, बंजर जमीन नहीं दिखता, उसमें पूरा ग्रीन दिखता है। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी स्टडी भी आप कर सकते हो, बट व्हाट आर द ट्रीज, बट एक्यूरेट नहीं आएगा, कुछ मानसून नहीं होता है, वो मर जाता है। एयर वाटर पोल्यूशन तो कर ही नहीं सकते हो, सॉइल भी खराब हो जाएगा, उस समय चेंज हो जाता है सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक, धुल जाता है ना पानी में। तो इसलिए मानसून में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टडी। तो उस 4 साल हम लोग का लॉस है, 4 महीना। अदरवाइज अच्छा ये हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज पोस्ट मानसून। ओके, तो 4 ही महीना होता है। लेकिन हम लोग लिखते हैं कि 6 महीना होता है, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। स्प्रिंग में बहुत सारे कविता है, बसंत है ना। लेकिन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 4 ही सीजन पता है इंडिया का, प्री मानसून, पोस्ट मानसून, मानसून, विंटर। दिसंबर इज द कॉमन मंथ। तो कोई भी 3 महीना में ही करना है, आपको एक्सटेंड नहीं कर सकते कि कुछ महीना आप विंटर में कर लिए, कुछ महीना समर में कर लिए, उसमें पता नहीं चलेगा। एनवायरमेंटल काफी चेंज होता है, बिकॉज मिक्सिंग लेवल चेंज होता है। मिक्सिंग लेवल मतलब अब जब धुआं निकलता है ना ड्यूरिंग समर, वो डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन विंटर में क्या होता है, नीचे ही रहता है। तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट प्रॉपर्ली। तो आपको जो स्टडी करना है एक पर्टिकुलर सीजन में ही करना है, और वहाँ पे शुरू करके अंत कर देना है। ओके, दैट इज कॉल्ड रैपिड ईआई। So for this one year study, so you see where 1 ईयर स्टडी आपको पूरा मंथली माने एक सीजनल का आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, 4 रिपोर्ट आएगा, 3 रिपोर्ट। तो स्टडी कौन करता है? स्टडी कौन करता है? ये मिनिस्ट्री या प्राइवेट कौन करता है? मतलब ये जो डेटा कलेक्ट करता है, ये जो देयर आर NABED accredited कंपनीज। हाँ, NABED का फुल फॉर्म देख लीजिए। हाँ, NABED एंड QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया।
स्टडी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाने का उतना समय नहीं मिलता है, पूरा 1 साल 1 महीना। हम लोग अगर बोलेगा हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कर दो तो कर देता हूँ, रिस्क असेसमेंट स्टडी कर दो तो कर देता हूँ, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट। ओके, पार्ट रिपोर्ट बनाने का मैं साथ किया एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लेकिन इसमें मैं थक गया, क्योंकि हमको पढ़ाना भी है ना, तो फील्ड ज़्यादा समय नहीं कर पाता, उसके लिए मैन पावर चाहिए, इसलिए कंपनी लोग भी अच्छा कर देता है। Okay, तो these are the आपका टेली करता होगा, EIA नहीं करता है, EIA नहीं करता है, नीरी करता है, नीरी नागपुर में कौन करता है? रांची वाला। रांची वाला। तो ये जो हम लोग स्टडी कर लिए ना, स्टडी क्या क्या किए, ये सब किए, एयर पोल्यूशन स्टडी, वाटर पोल्यूशन स्टडी, बायोडाइवर्सिटी, लैंड यूज, सोशियो इकोनॉमिक, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, रिमोट सेंसिंग, हम लोग कर लिए। एंड देन क्या, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं जेनरिक स्ट्रक्चर। ये MOEF नोटिफिकेशन 2006 का नोटिफिकेशन आप गूगल करिए, अब मैं दे दिया हूँ, उसमें पूरा दिया हुआ है कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको यही लिखना है, और इसमें क्या क्या लिखना है वो भी दिया हुआ है। मैंने आप पहले फिल इन द ब्लैंक्स करिए, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर एक होगा, चैप्टर से होगा, देखने में सुविधा होगा। अदरवाइज कोई कुछ भी बना के ले जाएगा। स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ऑल्टरनेटिव क्या है, जैसे नैनो फैक्ट्री यहाँ बना दिया, खेत में बना दिया था, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तुरंत बोला कि मैं बंद कर दूँ, बंद करना पड़ा, खेत में आप नहीं बना सकते हो, इट इज एग्रीकल्चरल लैंड। आप ऑल्टरनेट खोले क्यों नहीं, आप पूर्णिया में क्यों नहीं खोले, व्हाई? दीज आर द इश्यूज। आपको ऑल्दो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पब्लिक हियरिंग सब लोग हो गया था, सब कुछ, लेकिन ऑपोजिशन था ना, वो पब्लिक को बोला कि भाई यहाँ पे गलती से हम कर लेंगे लैंड, हटा दिया, पूरा इन्वेस्टमेंट करके जहाँ पर सिंगूर वाला। तो ये जो एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइट, जैसे हम लोग अभी जिंदल बोल रहा है कि वे वेस्टर्न घाट में हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे, तो इट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ओपन कास्ट माइन इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ना। साइट बोले कि वेस्टर्न घाट में क्यों करिएगा, इतना इको फ्रेजाइल एरिया आप दूसरी जगह दीजिए, व्हाई हो सकता है। तो ये सब ऑल्टरनेट स्टडी का भी, ऑल्टरनेट साइट का भी स्टडी करना है इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाना है कि भाई जब हो गया, प्लांट सेटअप हो गया, आप कैसे कैसे मॉनिटर करेंगे। आप लोग आउटसोर्स कर देते हैं, आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, डिपार्टमेंटल पीपल होना चाहिए, एनवायरमेंटल इंजीनियर रिक्रूट करना चाहिए। ओके, देन एडिशनल स्टडी लाइक पब्लिक कंसल्टिंग, पब्लिक हियरिंग, रिस्क असेसमेंट, ये सब करना है। प्रोजेक्ट बेनिफिट क्या क्या होता है वो भी लिखना है कि आप घर खाता नहीं, कामशाला नहीं खोल रहे, इसमें प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री नहीं चलेगा। ओके, तो these are the environmental benefit analysis। आज चली हुई इंफॉर्मेशन, टाटा स्टील का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे काफी एयर पोल्यूशन था, जो एयर पोल्यूशन था हम दे दिए। MOEF ने बोला कि ये इतना पोल्यूशन दिखा रहा है, हम बोले सर जो रेटिंग है वही दिखा रहा हूँ। तो हम तो बोला कि 4 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, 30 एनवायरमेंटल क्लियरेंस किए, कोई इतना ज्यादा रिपोर्ट नहीं दिखाया। यू आर द ओनली पर्सन हु इज शोइंग मी द एक्चुअल कंडीशन। इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हम उनको परमिशन नहीं दे सकते, हम बोले सर क्या करें। बोला कि 2-3 दिन टाइम में वर्किंग डे है, तुम हमको 4 पेज का लिख के दो, व्हाट आर द एक्शन यू विल टेक टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल। तो हम लोग बताए कि सर देखिए, अगर हमको चालू करने दीजिएगा तो ये 10 किलोमीटर एरिया में मैं पानी छिड़काऊंगा, रोड ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करके मिनरल ट्रैवल होगा। These are the things I am going to take that will reduce the air pollution condition by 30%। अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यही कंडीशन रहेगा जो आप देख रहे हैं। हम मैं रिड्यूस करूंगा, ये वादा करता हूँ, आप मैं लिख के देता हूँ, आप इजी बन सकते। आप बहुत अप्रिशिएट किया कि यू आर गिविंग द एक्चुअल कंडीशंस, और बाकी लोग तो उसको देखा, आई कैन अंडरस्टैंड, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते जल्दी से। यानी यू आर द ओनली ट्रूथफुल पर्सन, क्योंकि हम 4 दिन में मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ 30 प्रोजेक्ट्स, द ओनली वन प्रोजेक्ट विच इज गिविंग द एक्चुअल रिपोर्ट। तो आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग अच्छा रिपोर्ट देते हैं, अच्छा रिपोर्ट मत दीजिए, उसमें प्रॉब्लम होगा।
अथॉरिटी आके चेक करेगा ना तो सर आपको करेगा, बोलेगा यू आर द पर्सन जो आप पोल्यूट किया। देखिए आपको रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल तो इतना आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल आ रहा है आप दीजिए गवर्नमेंट को। उससे दबाव भी तो बहुत आता है। गवर्नमेंट बंद नहीं करने करेगा, सॉल्यूशन निकालेगा। आप लोग अगर थर्मोमीटर में बोल लिया है कि भाई हमारा 90-80 है, डॉक्टर दवाई देगा आपको? नहीं देगा। गवर्नमेंट बोलेगा कोई पोल्यूशन हो ही नहीं रहा, नहीं कोई डेटा नहीं दिख रहा, हम क्यों खर्चा करें? डेटा तो दिया था वो लोग तो गवर्नमेंट अप्रूव। अरे उसको हम लोग पैसा भी बोलते हैं कि भाई तुम कम दिखाओ। कैसे आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं आप बोलते हैं मेरा शुगर वो मत दिखाना, किसका जल्दी होगा? आप लोग सबका होगा। अंडरस्टैंड? सो 3000 and this is public hearing, this picture of many public hearing I have taken. ये अब्रॉड में होता है, इंडिया में होता है, बहुत अच्छा जगह अच्छा होता है। एंड कहीं रिवोल्ट माने रिवोल्यूशन भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? मूवमेंट एजुकेशन भी होता है कि भाई नहीं करने देंगे, हाँ। फिर नेता को थोड़ा पैसा दिया जाता है, बोलता है कि चुप हो जाओ, तो हो जाता है। So these things are going on in India. People are environmentally very illiterate. हम लोग जानता नहीं है कि क्या करना है, वो कोई नौकरी करता है और कुछ नहीं। Because नौकरी is a crisis in India, तो यही होता है। And yes, this is CPCB website. इसमें आपका पावर प्लांट का जितना भी इंडस्ट्रीज है, whether it is airport, whether it is steel plant or a power plant, every standard is given in this particular website. And then this is a air pollution monitoring, आपको कहाँ करना है. Suppose this is the lease area and this is the buffer zone. देखिए कहाँ है, देखिए कितना दूर में है. बाहर में पूरा करना है एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। एवरी क्वार्टरली आपको एयर पोल्यूशन रिपोर्ट देना है। किसको देना है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। CAAQMS हां CAAQMS करते हैं। कंटीन्यूअस एयर क्वालिटी होता है लेकिन उसमें भी जानते हैं ना, उसमें एक फार्मूला लगा दिया जाता है। 100 से ऊपर आएगा तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं वो तो रहता है, बीटा फैक्टर निकाल के डालता है। क्यों डालता है भाई? उसको कम करने के नहीं डालता एक्चुअल होता है तो भी एक्चुअल करना है ना, आइसो कनेक्टेड सैंपल लेके फिर बीटा फैक्टर डालता है। क्यों डालता है? फैक्ट्री से अलाउड और नो चेक नहीं किया। आप जो पॉल्यूशन है वो दिखा नहीं रहे हो, आप अच्छा दिखा रहे हो। सर अगर सर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता गवर्नमेंट की साइट चाहिए। गवर्नमेंट तो सर देख रहा है ना कि आप कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, वही आप सर ऐसा अलाउ भी नहीं कर रहे हो, देख के भी अनदेखा कर रहे हो। देखिए जिस समय एक बार क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया का स्टडी हुआ, उस समय धनबाद वगैरह जो है ना सब पूरा क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया में आ गया। फिर पीओ में से चिट्ठी आया कि देखो मेल आया, फोन आया कि भाई इस डॉक्यूमेंट को मत निकालो, ये तो गलत है ना। तो उसके बाद क्या किया ना, कुछ एरिया आइडेंटिफाई करके बोला कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में धनबाद इज द क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, लेकिन बीसीसीएल इज नॉट एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसमें पूरा दिया हुआ है व्हाट इज द स्टैंडर्ड। आपका मोबाइल में हमेशा मिल जाएगा, ये लीजिएगा जो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशन में क्या देता है। PM10 हमेशा 100 से कम देता है। धनबाद में कैसे हो गया भाई, एक साल में हम देखें सब 100 से कम देता है। भाई मेरा घर में जो एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग है मैं जो खरीदा हूँ उसमें हमेशा 150-200 देता है। मैं कभी फील करता हूँ कि भाई क्या ले रहे हैं ज्यादा बचेगी नहीं। बाहर में दिख रहा है कि एकदम किसी को बोलेंगे, डीसी को भी बोलेंगे कि सर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बोलना है, आप बात करके बैठो। मल्टीप्लाई फैक्टर हाँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। वो समझना जान के भी नहीं जानना चाहता है क्योंकि these people are solutionless, इसलिए बीमारी नहीं है बोलो। तो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग लोकेशन भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे दूर में जाके, जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, कोई लेक है, वहाँ भी कर, जैसे आपका माइथन पावर प्लांट में है तो आप यू आर वेरी नियर टू द माइथन डैम। माइथन डैम का पानी का एनालिसिस आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ओके, इज नॉट दैट वो बराकर का पानी है उनसे क्या मतलब है, लेकिन आपको एनालिसिस करना है।
सामान नहीं आता उसके घर, इधर शर्ट, इधर पैंट, इधर जूता पड़ा रहे, हाँ? तो वैसे ही अगर जब जिस दिन ऑडिटर आएगा उस दिन आप पूरा चेक कर लीजिएगा, जैसे BGMS आते हैं, इंस्पेक्टर आता है कोई, हाँ? जितना बार आएगा ना आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, आप बोलिए कि सर क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप देख लीजिए, अच्छा होगा। मैनेजमेंट को भी बोलेंगे भाई इसमें इतना इन्वेस्ट करो, मिल जाएगा। फाइन बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई आपको थोड़ा मैं रिपोर्ट सही नहीं। फ्रीज दे दूंगा, आपको मैं टीवी दे दूंगा, हाँ? आपका बेटी का शादी में बड़ा खटिया दे दूंगा, हाँ? कार दे दूंगा, आप मत देखिए। DIS ऑडिट ये लोग करता है कि नहीं? Test audits and treatment, storage and disposal audit. मतलब आप कहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं, whether that area is treated or not. DOD में होता है। Considered लिया ना? ये सब आप लोग करते हैं। Waste transporter audit. You will be finding that the dumpers which are transporting fly ash are spilling a lot on the way. Yes, sir. Okay. So they have to be in the tender itself. There should be a condition that to be covered and properly ठीक नहीं होता है, वो उसके लिए फ्लायर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग वेसल मिलता है, बल्कर तो बल्कर को स्पेशल नहीं ले जाता है, हाँ। उसी से ट्रांसफर। नहीं उसको देखते हैं अभी भी चल रहा है। नहीं वो नहीं जाता, पाउंड ऐश का जो जाता है ना, वेट ऐश वाला जाता है, ड्राई ऐश बल्कर से नहीं जाता। साइड से डायरेक्टली बल्कर में लोड हो सकता लेकिन वो जब लौटता है ना तो पूरा उड़ के सुखाता है, पूरा वो उड़ता है। ये प्लीज ऑब्जर्व करें। जब लौटता है मशीन ना, कट गया हुआ ऊपर। अच्छा वॉशिंग नहीं होता है। मैं गोवा में जितना भी आयरन रोड ट्रांसपोर्टेशन हम लोग व्हीकल्स है, माइन से जैसे निकलेगा ना पूरा व्हील वॉशिंग ये सब हो जाता है, लेकिन आपका यहाँ पे वॉशिंग नहीं होता है। जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, बिफोर इट कम्स टू द रोड, तो व्हील वॉशिंग एंड उसको वॉशिंग करना जरूरी है। सेफ वाटर। उसमें सेव वाटर हाँ? कंसेप्ट। उसी को सर्कुलेट करते हैं, उसी को सर्कुलेट करते हैं। नहीं अभी पानी भी बचा अभी तो स्प्रे होता है, बॉडी तो वॉश होता है, नहीं, मेरे से वो तो- बॉडी वॉश करके भेजा जाता है। अच्छा तब तो बहुत अच्छा है। बॉडी लेकिन को मैं जो देखा वॉश हूँ करने का है, जैसे बालू ले जाता है ना नदी से, काफी बालू गिरते रहते जाता है, उसके बाद क्या होता है वो फिर पल्वराइज हो जाता है, दूसरे चक्का जाता है, उसके ऊपर कोयला जाता है, हाँ? कोयला भी पल्वराइज हो जाता है, स्पिलेज होता है उसके लिए। तो ये हम लोग को बचाना है। टायर वॉश करने के लिए अभी एक प्लेटफॉर्म टाइप से सर तैयार कर रहे हैं जिसमें द टायर विल मूव थ्रू दैट वाटर, इससे बढ़िया से होता नहीं है, उसको स्प्रे करना पड़ता है। थोड़ा स्प्रे करना, स्प्रे मैकेनिज्म हम लोग खुद बनाए थे गोवा के लिए। 50 वी हैव इंस्टॉल्ड इन गोवा। जब खरीदा था वो लोग 35 लाख में खरीदा था, हम लोग बोला अगर बना दो 5-5 लाख में सब बना दिया। ऑटोमेटिक सेंसर भी दिया, एक तो ये भी दिया कंप्रेसर एंड बना दिया। मेरे पास फोटो भी है, हम लोग खुद बनाए। हम लोग का फ्री में बनाया था। ये हाँ तो बस लाइन करके जहाँ तहाँ आराम से नोजल देखिए, वायलट ट्यूब नोजल ट्यूब बराबर मिलता है। गाड़ी धोने का मशीन आता है, विदेश में देना है और चेक देना है। इंडिया में वैसे फिर मेटेरियल बैलेंस ऑडिट ये सब करना है। जैसे लोड And this is the organizational structure for environmental management system. हाँ, this is the environmental management system का आपको इतना बड़ा टीम चाहिए, तब आपका environmental management होगा, otherwise नहीं होगा। हम लोग ISO 14000